Start is my screen is let me share my screen first. So we were discussing current electricity. So resistance, resistivity, conductivity we have discussed. Drift velocity we have discussed. What's the formula of drift velocity? E over m tau. Now one more variable we are going to define, physical quantity we are going to define, that is a mobility. What is mobility? Denoted by mu. It is the drift velocity acquired per unit electric field. So here we are comparing how much drift velocity has been acquired by the electron when we have applied the electric field. So for unit electric field, what is the drift velocity acquired by the electron? That is the mobility. More is the drift velocity, more is the mobility. Less is the drift velocity, lesser is the mobility for given electric field. So how we can define mobility? It is defined as the drift velocity acquired by an electron per unit electric field. So mathematically mobility is what? This is drift velocity per unit electric field. So this is a simple. Ab isme if you will substitute this value here, from here equation number 1 we can write what is Vd over E. From equation 1 Vd over E वहीं से निकाल लो, क्या आएगा? E tau over m. So this is what? This is the mobility of the electron in a conductor. So this is E tau over m. Clear? Yes, ma'am. Unit of mobility क्या होगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड. यूनिट मोबिलिटी का यूनिट कैसे आएगा? वी वुड राइट यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ये तो. इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम. सो वी कैन राइट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस इज मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर ऑल्सो. सो यहाँ पे आप वोल्ट पर मीटर भी लिखोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द मोबिलिटी यूनिट. तो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है? मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर. तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाके, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ द मोबिलिटी. सो दोनों यूनिट्स वी कैन यूज फॉर मोबिलिटी. Yes, is mobility clear? Yes, ma'am. Anybody can take the screenshots बच्चे, बाद में फिर शेयर करना पड़ता है. शेयर कर देना फिर क्लास ये ग्रुप में. Yes, ma'am. Okay, resistances we have discussed. Resistance dependence we have discussed. Dependence of temperature on resistance that we have discussed. Conductivity, resistivity is clear, I hope. Now let us discuss combination of resistances. Combinations
combination of resistors. ये आपने पहले किया हुआ 10th में एक बार. तो दो तरह का कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. Series and parallel. यस, सीरीज एंड पैरेलल आपने डिस्कस किया हुआ है. सेम चीज हमने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है. लेट अस कंसीडर वी हैव 3 रेजिस्टर्स connected in series and we have connected the series combination with a battery. Battery. Okay, Good morning. good morning बच्चे. Be on time. R1, R2, R3. These are 3 resistors and V is the potential or voltage we have applied across these 3 resistors. Right? Now, वैसे ही करना है हमने. कंजर्वेशन रूल कौन सा लगेगा? पोटेंशियल इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड हियर. लेट अस कंसीडर पोटेंशियल अक्रॉस V1 is R1 is V1. Across this it is V2. Across this is V3. And we know that in series current would remain constant. ठीक है? And if this combination we are going to consider one resistance which is connected to battery. इसको एक ही रेजिस्टेंस मान लेते हैं. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V. एंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको RS. मीन्स इनको कंबाइन करके ये RS बना हुआ है. राइट? तो करंट इज फ्लोइंग, दैट करंट इज I. सो यूजिंग ओम्स लॉ नाउ. ओम्स लॉ क्या है? V is equal to IR. So what is V1? Potential drop across resistance R1. IR1. IR1. V2. IR2. IR2. And V3. IR3. IR3. And last वाला V यहाँ से 2. IR. IRS. Sorry. Now conservation rule क्या कहता है कि total potential given by the battery, potential जो बैटरी से मिल रही है, that would be equal to the potential drop across R1, R2 and R3. So we can write here V is equal to V1 plus V2 plus Plus V3. V3. V किसके इक्वल है? I into RS. Wow. ये किसके इक्वल है? R- R1, R1, R2, R3. R2, R- IR3. I कॉमन लेना है उधर से. R1, R2, R3. I कैंसिल. सो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया, नेट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. This we have done for 3 resistances. The same can be extended to more number of resistances. If there are large number of resistances and you want to find out the series combination, series effective resistance, then you have to simply take the summation of all the resistances to find out the total resistance. Clear? Yes, ma'am. Yes, Now let us discuss parallel combination. Take the screenshot. Next is second type of combination is parallel combination. Parallel combination of the resistances. Parallel combination में क्या होता है? One end of all मैम resistances. डिवाइड बाय 1 होता है. Yes. मैम ये ऊपर वाले सीरीज की तरह सेम होता है, बस डिवाइड अपॉन 1 रहता है. Yes. 1 upon R1. Yes. Reciprocal of effective resistance is the sum of the reciprocal of all the resistances. ठीक है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में
सभी का वन एंड इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द बैटरी, एंड सभी का जो दूसरा एंड है कॉमन पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है, मींस दोनों एंड कॉमन पोटेंशियल पे रहेंगे, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज V, दिस इज R1, R2, R3. Let us consider the current given by the battery is I. यहाँ पे करंट को तीन रास्ते मिल गए हैं, तो इट वुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. लेट अस कंसीडर दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. एंड पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है. सो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V है, here also and here also potential is V. Now I am replacing this combination with a single resistance. अगर हम माने कि तीनों को मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बन रहा है, that is RP, तो वो ऐसे जुड़ा होगा. RP की है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. So effective resistance of the parallel combination of the three resistors, and this is V, this is I. मैम Yes. मैम अगर हमें इनमें से किसी से R1 के ऊपर हमें करंट निकालना है, तो मैम इस जो करंट जा रहा है वो पूरा उस पूरे को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा? बच्चा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें करंट डिवाइड होगा. न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो हम उसके लिए अलग से करेंगे इसमें कि हर रेजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना है. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो उसका मेथड है बच्चे, यू हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ फॉर द सिंपल कॉम्बिनेशंस एंड किरचॉफ रूल फॉर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस, ठीक है. तो अभी तो हम सिंपल इसकी डेरिवेशन ही कर रहे हैं कि कितना आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ओम्स लॉ लगा देते हैं हर रेजिस्टेंस के लिए. फॉर R1 V is equal to I1 R1. So I1 कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन रूल क्या लगेगा, करंट डिवाइड होके तीन में V upon R1. तो इट वुड बी V over R1. And what is I2? V over R2. V over R2. And I3? V over V over R3. V over R3. And from here I? V over RS. Now we will apply conservation rule. Next slide पे जा रही हूँ बच्चे मैं. So conservation rule says that total current, हम यहाँ पे हर जगह पे आइडियल कंडीशंस ही मानते हैं. करंट कहीं पे लीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एंड सारे का सारा करंट जो है यहाँ पे आ गया. तो ये क्या है, V over RP, RS लिखा है मैंने वहां पे, इट इज RP. पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है. RP is equal to V over R1 plus V over R2 plus V over R3. V कॉमन कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 1 over R1, 1 over R2, 1 by R3. So this rule we will apply for parallel combination. And same can be extended for large number of resistances. अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हमारे पास n रेजिस्टेंस है, then one over R1, 1 by R2, it will continue 1 over Rn. अच्छा, अगर दो रेजिस्टेंस है, R1 and R2, 1 over RP कितना होगा, 1 by R1 plus 1 by R2. और सीधा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो R1 into R2 by R1 plus R2. yes.
तो ये फॉर्मूला लगाना है अगर दो रेजिस्टर्स हैं। जनरली दो रेजिस्टर्स होते हैं सर्किट में, क्योंकि हमने कई बार दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है, हम ये सीधा फॉर्मूला ना लगा के रेसिप्रोकल्स का सम कर देते हैं, बट फाइनल फिर वन ओवर आर पी निकालने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करना है, तो जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। बट समटाइम्स वी फॉरगेट टू चेक द रेसिप्रोकल। तो ये चीज अगर आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर मोर यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला 1 ओवर आर पी। तो आपका ये जो आएगा सम करके दैट इज 1 ओवर आर पी, फिर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इट्स बेटर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द टू रेजिस्टर्स। एनी डाउट? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? What is the equivalent resistance in this case? 5 exactly. जनरली क्या होता है, जब इक्वल होंगे तो आधा रह जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये आरपी क्या है? 10 into 10 over 10 plus 10। तो ये हो गया 100/20 दैट इज 5। तो ये 5 हो गया। चलो एक और मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब कितना हो गया? ये 5 10 हो गया। ओके, अब कितना हो गया? 15। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 आया, ये 5 ही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 5 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफाइड, ऐसे करके सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो दिस इज 15। अच्छा, अब मान लो कि इसको हमने अटैच कर दिया 30 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, यहां से मतलब मैंने यहां से कनेक्ट किया, 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे। राइट, अब मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। फाइंड current through each resistor। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे अभी हम? चलो आप सॉल्व करो, मुझे यहाँ पे बताओ कितना करंट आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना। मैम 6। अच्छा चलो यहाँ पे बताओ कितना आएगा करंट। यहाँ पे लिख लेती हूँ, मुझे I1 I2 I3 I4 I5 बता देना। ये मान लो I1 है, ये I2 है, सभी की वैल्यूज चाहिए मुझे। यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगाओगे। V is यस, किसी ने सॉल्व कर लिए? I1 I2 कितना आ रहा है?
दोबारा बोलो बच्चे। मैम I1 I2 और I4 और I5 3 आ रहा है, I3 6 आ रहा है करंट। ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 6 ये भी 3 और ये भी 3। यस मैम। आई की वैल्यू कितनी आई बच्चे? यहां से बताओ आई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, V is equal to IR. This is the current given by the battery. So it would be V by R. V कितना है? 30. R कितना है? टोटल R 5 + 5 + 5 15। तो ये हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट, तो मतलब यहां से 2 एम्पियर करंट निकला फ्रॉम द बैटरी। यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, यहां तक 2 एम्पियर करंट ही पहुंचा। यहां पे आके डिवाइड होगा, यहां पे आके फिर से मिल जाएगा। जो भी डिवाइड हुआ यहां पे बाहर निकल के फिर से मिल गया। तो यहां से तो 2 एम्पियर जा रहा I3 में से। अब मुझे ये बताओ I1 I2 I3 I4 I5 कितना होगा? 2 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो 2 एम्पियर के 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। कितने 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। एंड यहाँ पे भी 1 एम्पियर 1 एम्पियर। मैथमेटिकली ऑल्सो हाउ विल यू डू इट? ये देखो यहाँ पे पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट मेथड। ये आपका डायग्राम है। बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, here this is a wire। यहां से करंट निकला 2 एम्पियर, ठीक है, एंड दिस बैटरी इज ऑफ 30 वोल्ट। तो यहाँ पे 30 वोल्ट सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपका जो ये कॉम्बिनेशन बना था, ये 5 वोल्ट, ये 10 ओम 10 ओम, दिस वाज 5 ओम, दिस वाज 10 ओम, दिस वाज 10 ओम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था वो ऐसे बना, 5 5 बन गया था तीनों, 5 5 5, एंड दिस बैटरी इज 30 वोल्ट, ठीक है। करंट जा रहा है 2 एम्पियर। 5 × 2 V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाओ। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आया? V इज इक्वल टू IR। I कितने? 2, R कितने? 5। तो व्हाट इज द पोटेंशियल हियर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? 10 वोल्ट। इसके क्रॉस 10 वोल्ट, इसके क्रॉस 10 वोल्ट, क्योंकि तीनों में से करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मतलब इस 5 ओम, इसको 5 ओम बोला था ना हमने। बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 + 10, 10 एंड 10। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। ये तो हमने बिना सॉल्व किए कर लिया ना, बिकॉज द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस वैल्यूज वर वेरी कन्वीनियंट। बट आपको अगर ऐसी वैल्यूज नहीं मिलती तो आपको मेथड बता रही हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ से निकाला मुझे सिंगल करके इसको, ठीक है। 10 वोल्ट यहाँ पे है, 10 वोल्ट यहाँ पे है, 10 वोल्ट यहाँ पे है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। इसके क्रॉस 10 वोल्ट, हेयर 10 वोल्ट, हेयर 10 वोल्ट। अभी आपको हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पता है। फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V/R। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट मिल जाएगा।
तो इसमें से करंट देखना है तो V/R 10/10 1 एम्पियर। इसमें से करंट देखना है तो V/R का फॉर्मूला लगाओ 10/10 1 एम्पियर। यहां पे लगाओ 10/5 2 एम्पियर। यहां पे 10/10 1 एम्पियर। यहां पे 10/10 1 एम्पियर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मीन्स आपको जब भी आपने कोई भी वेरिएबल निकालना है, चाहे वो आपने करंट फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आपके पास ओम्स लॉ इज वन वेरी गुड ऑप्शन। दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपके पास हैं, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। ठीक है, तो वो लोकेट करनी है आपने, दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है हमारे पास। जब करंट निकालना है तो V एंड R होना चाहिए। R तो है ही, यहाँ पे लिखा ही हुआ था। तो पोटेंशियल देख लो कि कितनी कितनी है हर एक के अक्रॉस, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे लिख दी यहाँ पे। एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। यस, इज दिस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अच्छा, आपका एक एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये R, ये 5R, ये भी 5R, ये 5R, ये 5R, ये 5R। What is the equivalent value of the resistance? 25. Hmm? 25. 25। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया हमने इस पे? मैम क्योंकि एक साइड ही कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। हाँ, ये वायर है, इसको सीधा खींच के सीधा कर दो। ठीक है, तो किस तरह का लगेगा? एक एंड खींच के दूसरी तरफ खींच के ले जाना है वहां तक, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये आप वायर के एंड खींचना सीख जाओगे कि आपको सर्किट में बहुत बार जरूरत पड़ेगी, कि आपको पता नहीं चल रहा है। ये तो बहुत सिंपल था, तो दिख ही रहा था, बट समटाइम्स वी हैव टू सी। तो ये चारों, ये पांचों के पांचों रेजिस्टर्स सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज 25R। राइट, चलो एक और करते हैं। अभी मान लेते हैं हम सभी 4 ओम है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड D। ये 2 पॉइंट्स है B एंड D, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूं मैं। ये वाला हटा दो यहाँ पे, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अब इसे हटा रहे हैं।
what is the equivalent resistance between B and D? Tell me the answer. मैम 16. Here, whenever the ends are given, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने बैटरी वहीं पे लगानी है. B and D पे बैटरी लगानी है हमें. ठीक है, तो ये वाला एंड जो बचा है हमारे पास, ये B से लेके C तक, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो खुली एक वायर है, ऐसी खुली पड़ी है. ठीक है, तो यू कैन इग्नोर दिस. तो ये वाली BC वायर है यहाँ पे. इन दिस पर्टिकुलर केस वायर BC कैन बी इग्नोर्ड. इसे इग्नोर कर दो. तो बचा क्या मेरे पास? B से A तक 4, इधर 4, यहां पे 4, एंड यहां पे मैंने बैटरी लगाई हुई है. तो अब 6 आएगा एम्पियर. अब ये और ये सीरीज में हो गए, ये 4 और ये 4. हम टेढ़ा ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 4 और ये वाला इसको ऐसे बना सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 4 एंड 4. ठीक है, तो ये बन गया 8 और ये है 4, एंड यहाँ पे बैटरी लगी हुई है. 4 एंड 8 दे आर पैरेलल. तो क्या आएगा? इक्विवेलेंस 8 into 4, 8 plus 4, 32/12. कितना आया? 16/6, 8. 16/4 के टेबल पे काट दो इसे. 8/3. 8/3 ohm. So this is the equivalent resistance. जब भी आपको लगे कि ये तो खुली वायर रह गई है, ये किसी कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में यू कैन इग्नोर दैट पोर्शन ऑफ द वायर. ठीक है, मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए. अब ये मैंने ये बोला था कि हमने बैटरी B एंड D के बीच में लगानी है. ठीक है, तो B D के बीच में इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है. तो ये वाली जो वायर थी मेरे पास BC, ये खुली रह गई, कहीं पे कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, करंट कहाँ से जाएगा? ये देखो, जो बैटरी में से करंट निकलेगा वो तो ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा. इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे जाके उसके पास रास्ता ही नहीं है, खुला एंड है. तो नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस. ठीक है, तो करंट आपका इन्हीं 2 आर्म्स में जाएगा. तो आपने इन्हीं 2 आर्म्स को रिटेन करना है, इसे हटा देना है. करंट कभी नहीं फ्लो करेगा जब तक उसे क्लोज्ड सर्किट नहीं मिलेगा. तो ये तो कहीं पे जाके क्लोज हो ही नहीं रहा है, ये ओपन एंड है. ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा. तो करंट यहां से फ्लो किया तो आपने ये तीनों रेजिस्टेंसेस रख लेने हैं. ये रख लिए मैंने यहाँ पे 4 4 एंड 4, एंड बाकी मैंने जो एक रेजिस्टेंस था इसे हटा दिया. तो ये 4 एंड 4 सीरीज में, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लिया मैंने 4 4 एंड 4. ये 4 4 सीरीज में होने की वजह से हो गए 8 8 एंड 4 फिर आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. एक और करें, इसी को एक्सटेंड कर रही हूं मैं, इसी को एक्सटेंड कर रही हूँ. ठीक है, ये था मेरे पास ऐसा सर्किट. 4 4 4 एंड एक था मेरे पास यहाँ पे 4. अब करो, जो भी पॉइंट है वही लिख लेते हैं. A B C D, ये पॉइंट है A B C D. अब फाइंड आउट करो रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड D. क्यों?
अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे फिर से यहीं पे बैटरी लगाएंगे, बी एंड डी में बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगाने से थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि हमें पता चलता जाता है करंट कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको भी वैसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये तो चीज वैसी बनेगी 4 and 4, ऊपर वाले 4, ये वाले दोनों 4 सीरीज में है। अब ये 4 बना रही हूँ मैं, ये 4 बना लिया। अब जो नीचे वाला 4 बचा है, इसको कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, ये सी तक पहुंच गया मेरा वायर, डी तक ऐसे पहुंचाने की बजाय मैं ऐसे पहुंचा दूं। ठीक है, एंड यहां पे हमने बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी है, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अब करो इसे, क्या हो गया ये 8, 4 and 4, 32/3, कितना 32/3, 32/3। कैसे निकाला इसे, 1/RP is equal to 1/8, 1/4, 1/4, 8, 1 plus 2 plus 2, 5/8, तो RP Yes, ma'am. is 8/5। चेक करो बच्चे से दोबारा से, या मैंने गलती की है या आपने की है। तो मेरा भी इतना ही आता है। मैम इतना ही है। 8/5 आ रहा है सबका। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. देखो फिर 32/3 कहाँ से आया, कुछ गलती होगी वहां पे, चेक कर लो। मिल गया, कहाँ गलती हुई थी। ओके, ओके बच्चे, किरचॉफ रूल के मैं आपको अभी स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, इसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे। किरचॉफ्स रूल, ये जो अभी तक हमने सारे सर्किट्स किए हैं, दे वर द वेरी सिंपल वंस, बट समटाइम्स वी गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। तो उस केस में हम लगाते हैं किरचॉफ रूल। ठीक है, किरचॉफ हैज गिवन 2 रूल्स, इसके 2 रूल्स हैं। वन इज जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या है, कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड है एक जगह पे, दूसरी, ये जंक्शन रूल वैसे हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अभी। ये 5 वायर्स मैंने कनेक्ट कर दी, हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड R5। मान लो कहीं से करंट एंटर कर रहा है, कहीं से बाहर जा रहा है, I1, I5 बाहर जा रहा है, I4 एंटर कर रहा है, I3 भी मान लो कि एंटर कर रहा है, एंड I2 इज गोइंग आउट। तो जहाँ यू सी द पॉइंट वेयर ऑल दीज करंट्स आर मीटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन वही होता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आके रुकती हैं, ठीक है, आती हैं या जाती हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। नाउ एज पर दिस रूल, sum of algebraic sum of all these currents at a junction is 0। कोई भी करंट आके यहाँ पे रुकेगा नहीं। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जंक्शन रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यस,
बच्चे कोई प्रॉब्लम है? Am I audible? मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा था आपके आवाज। ओके मैम आपकी वॉइस लैग होती है। ओके, लैगिंग हो रही थी। ओके फाइन, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि जंक्शन रूल क्या होता है। दिस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द करंट्स, हमारे पास एक वायर मैश है जो एक जगह पे मिल रहा है, बहुत सारी वायर्स इकट्ठी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज 0। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी स्टेटमेंट। Algebraic sum of all the currents at a point or junction is 0। क्यों 0 है? जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना बाहर भी जाएगा। हम ये वी कांट से दिस थिंग दैट द करंट एंटरिंग हियर इज नॉट इक्वल टू द करंट लीविंग हियर। अगर हम ये कहें कि 5 एम्पियर करंट टोटल यहाँ पे एंटर हुआ तो 5 एम्पियर करंट ही यहाँ से लीव कर जाएगा। टोटल ऑफ 5 एम्पियर करंट मस्ट बी लीविंग दिस जंक्शन, ठीक है, बिकॉज द चार्ज इज कंजर्व्ड। ये नहीं है कि 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आया एंड 4 एम्पियर करंट जो है निकला, तो 1 एम्पियर करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज गायब नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि 5 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है एंड 4 एम्पियर करंट लीव हो रहा है। इफ आई एम सेइंग दिस थिंग, 5 एम्पियर एंटर हुआ, 4 एम्पियर लीव हुआ, तो 1 एम्पियर कहाँ पे गया? मीन्स 1 एम्पियर करंट का जो चार्ज था वो डिसअपियर हो गया कहीं पे। दिस इज नॉट पॉसिबल। डिसअपियरिंग ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स हियर एट दिस जंक्शन इज 0। तो हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन जिसे बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि करंट एंटर जो कर रहा है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एंड करंट जो लीव कर रहा है वो नेगेटिव है। तो क्या लिखूं? I1 पॉजिटिव, यहां पे आ जाओ डायग्राम पे, I1, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, I5 नेगेटिव। इज इक्वल टू 0। मतलब क्या लिखूं इसे? I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। ये चीजें हम उधर ले गए। तो क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं हम? I1, I3, I4 ये एंटर करने वाला करंट है। I2 and I5 is a current which is leaving the junction. So can we say that the total current entering the junction is equal to total current leaving that junction? Yes, ma'am. ठीक है, जितना Yes, ma'am. एंटर करेगा उतना लीव भी करेगा। मतलब टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। वहां पे रुकेगा नहीं कोई भी करंट, जंक्शन पे रुक ही नहीं सकता, ठीक है, 0 रहेगा जो रुकने वाला करंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। Charge. वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल इसका क्या है? दैट इज अ लूप रूल। सेकेंड इज द लूप रूल। ये है बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ
conservation of energy. इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी लूप कंसिडर करेंगे जिसमें सेल भी लगे हों, रेजिस्टेंसेस भी हों, मतलब एक क्लोज लूप की बात होगी यहाँ पे। मान लो एक आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसमें से हमने कोई लूप कर लिया, ये वायर्स जा रही हैं इधर उधर आगे, ठीक है, आगे जुड़ी हुई हैं। मैंने वो सारी जुड़ी हुई वायर में से एक ऐसा लूप कंसिडर कर लिया है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये सेल्स हैं हैविंग द EMF ε1 ε2, ठीक है। अब लूप रूल क्या कहते हैं? ε1 ε2 आर द, यू सी, दीज आर द EMFs और पोटेंशियल्स गिवन बाय द सेल्स। अब जब इनमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से मान लो I1 कर रहे हैं, इसमें से मान लो I2 कर रहा है, इसमें से I3 कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है। तो इस करंट फ्लो की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे। तो जितना पोटेंशियल बैटरीज ने दिया है उतना ही ड्रॉप होगा। जितनी एनर्जी इस बैटरीज ने दी है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेंगे हमारे रेजिस्टर्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी वुड रिमेन कंजर्व्ड हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल? Algebraic sum of all the potential drops and EMFs in a loop is 0, ठीक है। या मैं सिंपल सी एक स्टेटमेंट जिसको हम यूज भी करेंगे वो लिखवा रही हूं, द सम ऑफ EMFs of all cells in a loop is equal to the sum of products of currents and resistances। मतलब जितने EMF हैं आपके लूप में, वो सभी का सम किसके इक्वल है? I into R, ठीक है। ये I के ऊपर हम समेशन कर रहे हैं इसकी। जैसे यहाँ पे दो सेल्स हैं, ε1 ε2। अब ये साइन कन्वेंशंस जो हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी इन्होंने दी है, EMF दी है, सेल 1 एंड सेल 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकता है, कोई ना भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सारी एनर्जी इन दोनों सेल्स ने दी है, दैट वुड बी इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दीज रेजिस्टर्स और पोटेंशियल्स। वी must concentrate on the word potentials here. The potentials given by the batteries, that is EMF, some of the EMFs of these two batteries is equal to the potential drop is I into R, the sum of products of currents and resistors in a loop of that loop। सेम लूप की बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन हम कल डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस रूल। यहां तक बच्चे इफ क्लियर है ये? यस मैम। कोई Yes, डाउट? ma'am. केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे है? मैम 9:20। 9:20। ओके, 9:10 होने वाले, सो यू नीड 10 मिनट ब्रेक ऑल्सो, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट्स ले लिए बच्चे सबने? यस मैम। यस मैम। कैमरा ऑन करो अटेंडेंस के लिए।
Daksh, are you here? Daksh and Muskan, Shruti, Rajshri. Right. सब समझ में आ गया आज का टॉपिक? Yes, ma'am. यस मैम. कोई डाउट नहीं है? नो मैम. मैम है मैम, ये सेकंड वाला रूल मुझे अच्छी तरह समझ सेकंड वाला नहीं बच्चे आया। दोबारा से करेंगे डिस्कस. अभी मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दी है उसकी, ठीक है? उसको डिटेल में इट विल टेक फुल आई थिंक हाफ एन आवर. उसकी प्रॉपर एप्लीकेशंस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब जाके वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके साइन कन्वेंशंस एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल. So if no doubt, you can leave. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. You may